Welcome, welcome to the series of lectures Physics. Today we are going to start a new topic. The name of that topic is circular motion. We have discussed projectile motion before. Projectile motion is an example of two-dimensional motion. When a particle is projected, to discuss the motion of the particle, we have to always consider two axes, x and y both. That is, it is also an example of the motion in a plane. For example, if some particle is moving in this plane in this way, what we can say that this is an example of motion in a plane. It means to discuss the motion of this particle, we require two axes. That's why it is known as a two-dimensional motion. So first of all, the circular motion is an example of two-dimensional motion, or we can also say that an example of motion in a plane. But what happens when we discuss one-dimensional motion? The displacement, to characterize the motion of a particle, displacement, velocity, acceleration, everything is along that straight line only, either in positive direction or in negative direction. Means when the particle is moving on this line, this is an example of motion in one dimensional, a straight line motion. Suppose any particle is moving in any way in this line, the displacement, velocity, acceleration, everything, when we want to characterize the motion, when we want to explain the motion, that happens on a straight line. But when the particle moving in a plane like this, if it is retracing the path like this, it is moving in a plane, to characterize the displacement, we have to consider angular displacement. What we shall consider here, if we are talking about this, what we shall consider? Angular displacement. And we shall give it in terms of theta. We shall consider it in terms of theta. Because if you see, अगर आप देखेंगे तो हर एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे यदि पार्टिकल के किसी एक छोटे से इस पार्ट को, इस आर्क को आप कंसीडर करेंगे, तो आपको यह महसूस होगा, सपोज किसका सेंटर वो है यहाँ। अब इसी तरीके से जब इस पार्ट की आप बात करेंगे तो इसका भी सेंटर सपोज करते हैं कि ये वो है। अब अगर इस पार्ट की आप बात करेंगे तो यह एक दूसरे इस आर्क के एक डिफरेंट रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। तो यहां से इस तरीके से आप सोच सकते हैं, अगर इस पार्ट की बात करूं तो आप सपोज कीजिए यहां पे इसका सेंटर होगा और इस पार्ट को या ओ डैश से इस तरीके से या डिफरेंट आर्क पे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसका अगर आप किसी भी एक पॉइंट से कंसीडर करेंगे, सेंटर से, जो हम लोग अभी देखेंगे, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में बात करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन किसी एक रेफरेंस एक्सिस के साथ उस पार्टिकल का पोजीशन जैसे जैसे चेंज करता है तो उस रेफरेंस एक्सिस के साथ उसका एंगल भी चेंज करते जा रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए कि यह एक लाइन है, यहाँ पे मेरा कोई पार्टिकल है, दिस टिप इज द पार्टिकल। अब यह पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहा है तो इसके साथ पहले यह थीटा एंगल बना रहा था, अब क्या कर रहा है कि यह इंक्रीज करते चला जा रहा है। मतलब तो डिस्प्लेसमेंट जब बात करेंगे तो करेंगे हम लोग इसमें। एक चीज हम लोग क्या देखेंगे कि व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन or doing circular motion,
the direction of velocity of that particle is always towards the tangent at that position. अगर कहीं पे आप बात करेंगे, यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, यहाँ टेंजेंट के अलॉन्ग है, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ टेंजेंट के अलॉन्ग है, यहाँ पे बात करेंगे टेंजेंट के अलॉन्ग है, इस मिडिल पॉइंट पे बात करेंगे इसके टेंजेंट के अलॉन्ग है, यहाँ पे ये टेंजेंट के अलॉन्ग है, टेंजेंट के अलॉन्ग है. मीन्स व्हेन particle is doing two dimensional motion, the direction of the velocity is always on the tangent at that point. तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी भी पॉइंट पे आपसे उसका एक्सीलरेशन, सपोज इन दिस डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पार्टिकल इज मूविंग, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज इसके टेंजेंट के अलोंग ही होगा. और ये हमको लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे कि प्रूव दैट व्हेन अ पार्टिकल इज डूइंग टू डायमेंशनल मोशन और सर्कुलर मोशन और मोशन इन ए प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट. उसके टेंजेंट के अलोंग इसका होता है. इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में. तो अभी जो अपना नया टॉपिक है सर्कुलर मोशन, तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं और कुछ मैथमेटिक्स के हेल्प से, जो मैथमेटिक्स हम लोग अभी बेसिक यूज करते हुए हैं, उस मैथमेटिक्स के हेल्प से कुछ इक्वेशन एस्टेब्लिश करने का कोशिश करेंगे जिसके सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करेंगे उस सारी चीजों को. तो सपोज कि कोई एक सर्कुलर पाथ हम कंसीडर कर रहे हैं. यह एक सर्कुलर पाथ है. सपोज कि ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वो सेंटर है इस पार्टिकल का, और इस पार्टिकल का पोजीशन जो है वो t इक्वल्स टू 0 पर सपोज कि ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा. इस पोजीशन का नाम हम p दे देते हैं. तो लेट एट t इक्वल्स टू 0 position of particle moving on the circular track, circular path is P, which makes an angle theta with x axis. यह कितना एंगल बनाता है, थीटा. अब सपोज कीजिए कि कुछ टाइम के बाद इस पार्टिकल का पोजीशन हो जाता है p डैश. तो एट t इक्वल्स टू 0 ये p पोजीशन पे था. आफ्टर टाइम t यह पार्टिकल मोशन करते करते इस लीनियर डिस्टेंस को ट्रेवल करते करते p डैश पे पहुंच जाता है और ऑरिजिन इसका वो है. एट t इक्वल्स टू t position becomes p dash. तो सपोज कि इस एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आता है वो कितना का आता है, डेल्टा थीटा का. इनिशियली यह पार्टिकल कितना एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, थीटा, और उसके टी टाइम के बाद इस पार्टिकल के पोजीशन में जो चेंजेस आता है
वह कितना आ जाता है, डेल्टा थीटा का। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन कितना है, डेल्टा थीटा का। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा थीटा। मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डेल्टा थीटा। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा से। तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो यहां से हम लोग ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज द एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन पर यूनिट टाइम what we will call angular velocity। and now अगर हम angular acceleration की बात करेंगे इस केस में, तो इसको एक स्टेप लेटर हम लोग लेंगे। आप यहां से लिख सकते हैं कि अगर बात करें एक्सीलरेशन का, तो क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2 theta by dt square, that is fine। if d theta by dt is known, d2 theta by dt square we can write to find out the, or we shall denote it as alpha, we shall denote it as alpha। so now we have angular displacement delta theta, we have angular velocity omega d theta by dt, and we have angular acceleration alpha, that is d2 theta by dt square। I am removing these things and we shall discuss something जो कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं उस इक्वेशन को। और इस तरीके से सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने के लिए मुझे इन सारी चीजों की जरूरत होगी, तो हम इसको नोट करके रख लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा थीटा कंसीडर किया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, और एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको एक्सीलरेशन हम बोलेंगे अभी, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी। करेक्ट। तो अब देखिए यहां से अगर इसकी बात करूं, तो इसका अगर यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम डेल्टा एस कंसीडर करें, और कंसीडर करें कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो कितना है, आर, तो लेट डेल्टा एस बी द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। क्या करते हैं हम लोग इसको कि अगर यह आर है, ये एल है और ये थीटा है, यहां से हम लोग क्या लिखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो एल जो कि ये आर्क का डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर थीटा के बराबर होगा। तो डेल्टा एस किसके बराबर होगा, आर डी थीटा के बराबर। तो अब यहां से यदि हम लोग लिख सकते हैं
टाइम की बात करूं, डेल्टा टी टाइम में आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, अगर यहां से आप लिख सकते हैं तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. What we can write? ds by dt equals to r d theta by dt. So ds by dt means what? V equals to r omega. V equals to r omega, where V means linear velocity or omega means angular velocity. V means linear velocity or omega means angular velocity. So if a particle is moving in a circle of radius r at any instant of time, the relation between the linear velocity and angular velocity is v equals to omega r. So we shall write down here also, since we have established this equation. So we have an equation v equals to r omega. इस इक्वेशन को हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे. तो इस तरीके से हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया. करेक्ट. तो अब जब लीनियर वेलोसिटी मालूम है, एंगुलर वेलोसिटी हमको मालूम है, तो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के बीच में मतलब यह जब इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो यह लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है उस चीज को एस्टेब्लिश करेंगे. अब हम यहां आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, जैसे यही पार्टिकल अगर 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल के डायरेक्शन को, वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम लोग किस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं. तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैरेक्टराइज करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे हो रहा है और उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में ले जाकर के, क्योंकि यह पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा, इस पार्टिकल का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है. इसका मतलब है कि हमको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और उस दोनों एक्सिस के अलाउंग हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करके, जैसे एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, आई यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं और वाई की तरफ जे यूनिट वेक्टर को लेकर के चलते हैं. सिर्फ सेम कन्वेंशन को यूज करते हुए हम आई और जे के टर्म में इक्वेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो इक्वेशन की हमको यूनिट वेक्टर के टर्म में डायरेक्शन दे दे किसी भी पार्टिकल का. तो वहां से हम प्रूव कर देंगे कि जब पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर मोशन में और प्लेन में मोशन करता है तो उस पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन, आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट again and again, repeatedly using this statement, if a particle is moving in 2 dimension or doing circular motion, projectile motion, all these are the example of the motion in a plane. So when a particle is doing motion in a plane at any point, at any instant of time, the direction of velocity is always towards the tangent at that time. So we have established this relation. Now see what happens. So this is our x and y axis. Put it as r. So अगर आप यूनिट वेक्टर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा जी, इसको आप आगे की तरफ बढ़ाइए और इसको ए कंसीडर करता हूं. तो
पी ए एक यूनिट वेक्टर होगा जो कि ओपी के अलोंग होगा। अगर इस पी ए वेक्टर को हम निकाल लेंगे तो ओपी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मुझे एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सपोज कीजिए कि ये यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स डैश, और वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया वाई डैश। तो अगर यह थीटा एंगल है तो यह भी कितना होगा एंगल थीटा। तो इस पी ए को let PA be the unit vector, let PA be a unit vector along radius, along radius OP। OP के along एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर यह थीटा एंगल बना रहा है, एक्स कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा। अगर इस पी ए यूनिट वेक्टर को मैं लिखने की कोशिश करूं, क्या लिखेंगे इसको, पी ए, और पी ए का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा आई मीन्स एक्स डायरेक्शन में, प्लस पी ए साइन थीटा इंटू जे। और cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। पी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो यहां से आप पी ए को लिख पाएंगे cos थीटा आई प्लस साइन थीटा, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। और यह चूंकि रेडियल डायरेक्शन में है इसीलिए इसको हम डिनोट करने के लिए ई आर के टर्म में लेंगे। रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का जो एक्सप्रेशन है या वैल्यू है आई प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। याद रखिएगा जब कभी भी हम कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की बात करेंगे तो यह क्या होगा, उसके रेडियस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, मींस रेडियस का डायरेक्शन डिनोट करेगा, इसको रेडियल डायरेक्शन डिनोट करेगा। जब कभी भी ई आर आएगा मींस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की हम बात करेंगे, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की बात करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, या रेडियल डायरेक्शन को डिनोट करेगा। और यदि यहीं पे आप इसके टेंजेंट की बात करें, सपोज कि इसको मैं बी ले रहा हूं, तो यह टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। जब इस टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करेंगे तो यह थीटा है, यह 90 माइनस थीटा और यह 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अगर यह थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज यह एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस जो है यह एक्स वाई पर 90 डिग्री है यहां से, तो यह रेडियल डायरेक्शन है और यह टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो दिस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी क्या थीटा। तो अगर मैं पीवी की बात करूं, जो एक यूनिट वेक्टर हम लेंगे इस डायरेक्शन में, तो इसका आप अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की बात करेंगे यही होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट निगेटिव एक्स की डायरेक्शन में आएगा और कितना हो जाएगा पीबी कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको हम यहां से थीटा दिया 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा पीबी कॉस 90 माइनस थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पीबी कॉस 90 माइनस थीटा, और ये निगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है तो माइनस आई, प्लस पीबी
थीटा एंगल बना रहा वाई एक्स के साथ, या थीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो पी बी कॉस थीटा इंटू जे। तो नाउ व्हाट वी कैन राइट कि पी बी एक यूनिट वेक्टर है टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। पी ए को लिया था किस यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस डायरेक्शन, तो अगर पी बी की बात करेंगे यहां से, तो पी बी इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। लेट पी बी a unit vector along tangent, इस टेंजेंट के अलॉन्ग है। अब यहां से आप क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस लगा हुआ है, तो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जी। और इसको हम डिनोट किस चीज से करेंगे, तो टेंजेंट के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा इंटू जे। तो वी हैव नॉट टू यूनिट वेक्टर, वन यूनिट वेक्टर क्या है, रेडियल डायरेक्शन में जो हम एस्टेब्लिश की, उसका वैल्यू कितना है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। और टेंजेंट के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर आ रहा है दैट इज माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जो। इस दो एक्सप्रेशन को भी हम राइट डाउन करेंगे और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग और वो किस डायरेक्शन में आता है। तो यहां से जो दो इक्वेशन निकल करके आया है, क्या आया है, तो ई रेडियल डायरेक्शन में जो हम निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और ईटी की बात करूं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा इंटू जे, ये यूनिट वेक्टर है। अब यदि वेलोसिटी में इस पार्टिकल का निकालो किसी टाइम टी पे, तो क्या होगा, यह आर है, आर विद द रेडियस, लेट आर be the radius of the circle। तो r एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ओपी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी और टेन रेडियल डायरेक्शन में है, तो ई आर इस पे यूनिट वेक्टर लगाएंगे, या रेडियल डायरेक्शन में है तो ओपी आर मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, और ई आर क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा, या वेक्टर आर मिल जाएगा। तो वैसे भी आप यहां से आर का कंपोनेंट लेकर के लिख सकते हैं। तो यहां से यदि मैं आर की बात करूं, आर इक्वल्स टू ओपी, ओपी का वैल्यू आर, और ई आर का वैल्यू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, मीन्स आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, correct? So now you have r. How you can find out the velocity, dr by dt? So do it. What we get, v equals to dr by dt, means r is constant, this length is constant, radius, r d cos theta by dt I plus r d sin theta by dt into j. So now what we can write, v equals to r cos theta by dt minus sin theta, और theta is a variable, so minus sin theta d theta by dt I प्लस r sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos थीटा d थीटा बाई dt
into j. So what we can write from here, v equals to r d theta by dt is what? D theta by dt is omega. Angular velocity is r omega. What will be? Minus sin theta I plus r again d theta by dt omega cos theta into j. R omega, if we take r omega common, what will be? R omega minus sin theta I minus sin theta into I plus cos theta into j. माइनस साइन थीटा आई और कॉस थीटा जे क्या है? यूनिट वेक्टर है. किस डायरेक्शन में? टेंजेंट के अलोंग. किस डायरेक्शन में? टेंजेंट के अलोंग. यह क्या प्रूव करता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है यह यूनिट वेक्टर है. इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ओनली. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी? मींस स्पीड के बारे में अगर बात करें क्या होगा? आर ओमेगा. आर ओमेगा हम लोग पहले भी वेलोसिटी का वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग. इट प्रूव्स दैट व्हेन अ पार्टिकल मूविंग in a plane or doing circular motion, the direction of the particle at any instant of time is along the tangent. So you can write it down, you can prove the velocity in this direction. So what we shall write? What we shall write? We shall write it as v equals to r omega minus sin theta I plus cos theta j. And we know that minus cos theta I plus minus sin theta I plus cos theta j is a unit vector having magnitude of 1 unit. So this shows the direction. So what we can write? V equals to r omega and this is ET, unit vector along tangent. This is very important expression. V equals to r omega correct. But you can see that if omega is constant, this term is constant, r is constant. If we make omega is constant, what this velocity says is the direction of the velocity. So what we can conclude? The direction of the velocity of a particle in motion in plane. एग्जाम्पल में आप सर्कुलर मोशन ले लीजिए. is always along the tangent at that point. This is very useful. Tangent. तो यहां से हम पार्टिकल के वेलोसिटी को आज डिस्कस किए हैं जब वो सर्कुलर मोशन में चलता है. तो जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा किसी भी तरीके से, सपोज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ फिर से, अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है आर्क पाथ पे, तो उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज वो किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट के अलावा. या क्या है? इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है. तो अगर कोई भी पार्टी ऐसे भी कोई भी पार्टिकल अगर 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, यहां से पूछा जा रहा है कि इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन होगा. अगर यहां पे पूछा जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये डायरेक्शन होगा.
किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, कब? जबकि वह मोशन में मूव कर रहा है, मोशन में, सॉरी प्लेन में मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की बात की, एंगुलर वेरिएबल्स की बात की, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब उस पार्टिकल के चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी में चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन चेंज करेगा, तो डायरेक्शन चेंज करने के कारण भी एक एक्सीलरेशन आएगा। और यदि साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, जो ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू भी चेंज करते जा रहा है, तो उसके चलते एक अलग एक्सीलरेशन हम लोगों को मिलेगा। तो एक को रेडियल बोलेंगे, एक को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे, तो दो तरीके का एक्सीलरेशन आएगा। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को याद रखने की जरूरत है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड ईटी। ईटी मीन्स डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। इस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन में आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।